ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ಅದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. आज हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं। बिल्किस बानो गुजरात में 2002 में जो दंगा फसाद हो गया था, उसमें 2000 लोगों की मौत हुई थी। उसमें से एक बिल्किस बानो का भी फैमिली वाले थे। उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। उनकी बच्ची को 3 साल की बच्ची को दीवार को पटक के मार दिया गया। और बिल्किस बानो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी। उसे पकड़ के 7 दिन तक कैद करके उसको बारी बारी से रेप हुआ उसका। और 11 लोग जो है रेप हुए। और बिल्किस बानो अपनी लड़ाई खुद लड़ी, जैसा भी सर बात करे हैं उसके बारे में। तो लड़ाई लड़ने के बाद बहुत मुश्किलों से वो जीती थी। और उनको 15 अगस्त के दिन उन कैदियों को रिहा करे हैं आज़ादी के दिन। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, हम औरतों के लिए। उनकी हार नहीं हुई बिल्किस बानो की, हम सारे औरतों की हार हुई बोल के मैं मोदी सरकार या ये बीजेपी गुजरात की सरकार से बोलती हूँ कि फौरी उन लोगों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी होना चाहिए। ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ಬರಲಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ. ನಾರಿ ಏಕತಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್. मेरा नाम ईसा बेगम है। अखिला भारतीय जनवादी महिला संगठन के बीदर जिले की सेक्रेटरी हूँ मैं। आज हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं। बिल्किस बानो गुजरात में 2002 में जो दंगा फसाद हो गया था, उसमें 2000 लोगों की मौत हुई थी। उसमें से एक बिल्किस बानो का भी फैमिली वाले थे। उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। उनकी बच्ची को 3 साल की बच्ची को दीवार को पटक के मार दिया गया। और बिल्किस बानो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी। उसे पकड़ के 7 दिन तक कैद करके उसको बारी बारी से रेप हुआ उसका। और 11 लोग जो है रेप हुए। और बिल्किस बानो अपनी लड़ाई खुद लड़ी, जैसा भी सर बात करे हैं उसके बारे में। तो लड़ाई लड़ने के बाद बहुत मुश्किलों से वो जीती थी। और उनको 15 अगस्त के दिन उन कैदियों को रिहा करे हैं आज़ादी के दिन। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, हम औरतों के लिए। उनकी हार नहीं हुई बिल्किस बानो की, हम सारे औरतों की हार हुई बोल के मैं मोदी सरकार या ये बीजेपी गुजरात की सरकार से बोलती हूँ कि फौरी उन लोगों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी होना चाहिए। फिर से दोबारा कोई मौका ना मिले कि उन्हें बाहर आने का, सीधा सीधा फांसी होना बोल के अपनी बात ख़त्म करते हैं। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ಅದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮ್ಯಾಗಿನ ಭರವಸೆ ಹಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂಬದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂದಿನ ತನಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ಜೀವಂತ ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯಾಗ ಭರವಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹೊರ ಬಂದಂಥ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗಾದಂಥ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಭೀ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಒಡೆಯುವಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು,
ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ಬಾಬಾಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದೇಶದಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಬಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜನವಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಬಂದಂಥ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾವು ಧರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर गुजरात गवर्नमेंट की जानिब से जो बिल्किस बानो केस के जो मुजरिमीन थे 11 के 11 मुजरिमों को रहमदिली की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। दरअसल ये रिहाई जो होती है उसका एक बाज़ाब्ता पैटर्न होता है कि किन मुजरिमों को इसमें छोड़ा जा सकता है और किन मुजरिमों को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ऐसे ही जो है ना रिहाई के नाम पर किसी रहमदिली के नाम पर किसी को छोड़ा जाने लगा, अगर आतंकवादियों को छोड़ा जाने लगा और ऐसे बलात्कारियों को छोड़ा जाने लगा और इस किस्म के जो घिनौने जुर्म करते हैं उनको छोड़ा जाने लगा, तो फिर उनको गिरफ़्तार करना और उनको सज़ा देना कोई माने ही नहीं रखता। बिल्किस बानो केस जिसकी चर्चा सारी दुनिया में भी सभी लोग जानते हैं कि इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ और घिनौना केस था। एक ही ख़ानदान के 14 लोगों को उस वक्त जो है ना मार दिया गया। सारे लोगों की, माँ की, बेटी की और सारी औरतों की जो है ना बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद जो है ना उसको मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया था। इत्तेफाक की बात है कि वो फिर जो है ना ज़िंदा पाई गई और आज तक जो है ना वो ज़िंदा हैं। उसने हक़ और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत ही मेहनत और कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन मुजरिमों को सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने के बाद आज जो है ना उनको फिर अगर जो है ना रहमदिली की दरख्वास्त पर छोड़ दिया जाता है तो ये उनके साथ निहायत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये तमाम महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। ज़रा सोच के देखिए कि जो बलात्कारी हैं, जो सामूहिक बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो कातिल हैं, जो ऐसे गुनाह किए हैं जो काबिल माफ़ी नहीं हो सकते, उनको और पूरे गुजरात से 11 लोगों को रिहा किया जाता है। 11 के 11 पूरे एक ही केस में मुलविस। अगर छोड़ना ही रहता तो किसी एक को और किसी केस का एक और किसी केस का एक, ऐसा 8-10 लोगों को, 11 लोगों को छोड़ा जा सकता था। लेकिन पर्टिकुलर एक ही केस के पूरे 11 के 11 मुजरिमों को छोड़कर हुकूमत गुजरात ये बता रही है कि ये इन्होंने जो रेप किया था, जो मर्डर किया था, ये सब उसकी इन्हों सराहना करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन दरअसल उनका एजेंडा यही है कि वो महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते हैं। महिलाओं के उनके पास कोई आदर नहीं है, महिलाओं के लिए कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं है। जबकि इस्लाम ने इस महिलाओं के लिए बहुत ही आदर और एहतराम का काम किया है। मैं इस मौके पर याद आता है मुझे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक औरत जब अकेली चल रही थी तो पीछे से एक आवाज़ आई कि तुम कहाँ जा रही हो। इस आवाज़ को सुनना था कि उस औरत ने कहा कि या तो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है या तुम खुद अमीरुल मोमिनीन हो, वरना उम्र के होते हुए उसकी ज़िंदगी में किसी और की मजाल नहीं कि किसी राह चलती हुई औरत को सवाल भी कर सके। जब हुक्मरान अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। ये यहाँ पर हुक्मरान गलत है, सारे बातें गलत होती हैं। हम देख रहे हैं कि कठुआ का मामला हो, हाथरस का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, महिलाओं के साथ जो है ना बलात्कार होता है, उनके साथ जो है ना शोषण होता है और उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे उसकी सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका में आज जो बर्निंग इशू है, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा और जो है ना बीजेपी के सारे लोग उस स्वामी की जो है ना सपोर्ट में खड़े हैं जिसने जो है ना हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो है ना शोषण किया है, उनके साथ जो है ना बलात्कार जैसी हरकत की है। तो मैं इस मौके पर हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, इस तरह महिलाओं का आदर नहीं किया जाता। महिलाओं का आदर करना है तो महिलाओं को जो है ना नीची निगाह से देखना पड़ेगा, उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और इसी इंसाफ के लिए आज ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मैं इन तमाम लोगों का सपोर्ट करता हूँ और हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि वो बिल्किस बानो के केस में जितने लोग आज छूटे हैं उनको दोबारा पकड़कर सलाखों के पीछे डालें।